Hello students, today we are going to start chapter number 2, that is acids, bases and salts. Main topics in the chapter will be acids and bases, their properties, effect of on acid base indicators, comparison of properties of acids and bases, aqueous solution of acids and bases, pH of the solutions, importance of pH of solution in our daily life. Then we also have some topics related to salts like nature of salt, acidic, basic or neutral, salt from common salt, that is preparation, properties and uses of sodium hydroxide, washing soda, baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. So let's start chapter, that is acids, bases and salts. Now first, what the word acid, from where it came. Word acid is came from Greek letter acidus, which means sour in taste, because earlier it was believed कि जितने भी हमारे पास sour in taste eatables होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कर्ड है, लेमन जूस, टैमरिंड, टमाटोज एटसेट्रा, the reason for sour taste, जो इनमें खट्टा taste है, that is some acidic substances are there. So acidus, sour in taste in Greek language. From there the word acid is taken as means the substances which are sour in taste. Similarly, bases is taken from bitter in taste, like soap solution, sodium hydroxide. So this is general classification. Acid and base क्या होते हैं? Acid sour substances and bases are bitter substances. But in actual we have other characteristics also. Taste cannot be the only thing that can divide. All these acid and bases can be classified on basis of which. So we have some general characteristics given by Arrhenius. So what are those general characteristics? First, acid are sour in taste, bases are bitter in taste. When we touch means आप एक थंब और फोर फिंगर के बीच एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस या सॉल्यूशन की ड्रॉप रख के उसको रब करके देखेंगे तो एसिड विल बी लाइक वाटर, मीन्स नॉन सोपी एंड नॉन स्लिपरी टू टच. बट जब हम बेस की ड्रॉप रख के देखेंगे दैट विल बी स्लिपरी, जस्ट लाइक सोप सॉल्यूशन इज स्लिपरी. सो दिस इज अनदर हाउ दे डिफर इन रिस्पेक्ट टू टच. इफेक्ट ऑन लिटमस, तो आगे हम पढ़ेंगे लिटमस क्या होता है. ये एक स्पेशल सब्सटेंस है जिन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं. So acids give red color in litmus. So means if there is blue litmus, that will change to red. And bases, they give blue color in litmus. So if there is red litmus, that will turn into blue. हम इस टॉपिक को आगे भी आएगा ये पॉइंट डिटेल में. Nature of ion when we dissolve them in acid in water. तो जनरली एसिड्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, बट वाटर के साथ वो एड अप होकर बना देता है हाइड्रोनियम आयन. एंड बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल बोल सकते हैं दोनों ही, फॉर इन वाटर व्हेन वी डिसॉल्व बेस इन वाटर. एग्जांपल्स, so commonly we are using hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, lactic acid is present in curd, malic acid in fruits, and sodium hydroxide is base, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. These are some examples of bases. Now coming to what are acid base indicators. Now when we have two substances A and B, one is acidic and other is basic, we make their solution. Now how can we check which one is acid or which one is base other than tasting? तो हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं which have different behavior in acidic और basic solution. तो अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस के यूज कर लें इनको तो हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच इज एसिडिक विच इज बेसिक. तो सच सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट बिहेवियर लाइक डिफरेंट स्मेल, डिफरेंट कलर in acidic and basic medium, they can be used to distinguish between acidic or basic solution. So these are known as acid base indicators. We classify these acid and bases indicators. First is based on source, means कहाँ से derive किया गया है acid या acid base indicator को.
तो इसमें हमारे पास है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जो नेचुरल मटेरियल से हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है लिटमस। लिटमस जो लाइकन से काई जो होती है उसके सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली ये डाई है, तो इसका कलर पर्पल होता है। तो ये पर्पल कलर की डाई लाइकन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो नेचुरल सोर्स है, इसलिए इसे हम नेचुरल एसिडिक बेस इंडिकेटर कहेंगे। सिमिलरली टर्मरिक पाउडर भी नेचुरल इन सोर्स है, और इसका जो पाउडर का आपको सॉल्यूशन बनाएं फिर आप उसमें सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालें तो वो रेड चेंज हो जाता है, बिकॉज टर्मरिक जो है वो बेस के प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाता है येलो से। सो इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज एसिड में ये कलरलेस रहता है। ऑनियन जूस, तो जैसे आपको पता ऑनियन की स्मेल जो थी बड़ी शार्प होती है, पंजेंट, बट उसके ऊपर विनेगर जो एसिड है उसको स्प्रे कर दें या उस ऑनियन को डिप कर दें उसमें, देन द फ्रेग्रेंस और स्मेल चेंजेस इनटू प्लीजेंट। जिस तरह हम सैलेड वगैरह यूज करते हैं तो ऑनियन जब लेते हैं तो उसके ऊपर विनेगर डालने से क्या होता है, उसकी जो बैड स्मेल होती है, फॉल स्मेल, वो प्लीजेंट स्मेल में चेंज हो जाती है। पर्पल कैबेज जूस, दैट आल्सो गिव्स डिफरेंट कलर इन acidic basic medium. Other than natural sources, we also have some synthetic, artificial और man-made acid-base indicator. दो most commonly use होने वाले इसमें है methyl orange and phenolphthalein. So it was based on source, कहाँ से derive किया गया है acid-base indicator को. Now depending on the change in behavior, that is effect on their characteristic. तो हमारे पास दो कॉमनली टाइप आती हैं इसमें, वो है ऑल्फैक्टरी वर्ड लिया हो गया है पावर टू स्मेल से। तो जब किसी एसिडिक बेसिक इंडिकेटर को यूज करके हम एसिड बेस का पता लगाते हैं बाय द चेंज इन इट्स स्मेल और ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर। और अगर उसका कलर में चेंज होता है विजुअल, तो हम उसको विजुअल इंडिकेटर या फिर कलर एसिड बेस इंडिकेटर बोल सकते हैं, जैसा कि लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फैथलीन का केस में है। सो वी शुड रिमेंबर द कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स and their color in neutral, acidic and basic medium. So let's see first what happens when we use litmus in acidic solution or in basic solution. So we are using here acid as HCl and base as ammonium hydroxide NH4OH. So one blue litmus paper we are having here. We will keep it in a petri dish and then we pour drop wise, one drop of acid and one drop of base. So first we can see here it is, we have taken out with the help of dropper one drop of hydrochloric acid. तो ये acidic in nature है, जैसे ही blue litmus को touch करता है it changes to red. Why? Because litmus is reddish in color in acidic medium. तो acid डालने से litmus का red color appear हो गया यहाँ पे. So we can say if blue litmus is changing to red then the solution was acidic in nature. Now same हमारे पास आगे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। रेड लिटमस पेपर को लेंगे पहले, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर डालेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दैट इज वी आर हैविंग बेस। यस, वन मोर थिंग, एसिड से रेड लिटमस के ऊपर डालेंगे, देयर विल बी नो चेंज देन। नाउ एल्कली या फिर बेस हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं इट टर्न्स स्लोली इनटू blue. So you can remember from here, acid they turn blue litmus into red and bases they turn red litmus into more acid base indicator, that is methyl orange and phenolphthalein. Let's see their color change also, how they behave in acidic and basic medium. Very important to remember. So we have here पॉइंट यहाँ HCl, here it is NaOH. मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज इन कलर होता है, we can see in NaOH base it gives yellow and in HCl acid it gives red color. तो मिथाइल ऑरेंज जो हमारे पास है एसिड बेस इंडिकेटर, रेड इन एसिड, येलो इन बेस. नाउ फिनोल्फैथलीन,
ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, बट जैसे इसको NaOH बेस में डालते हैं ये पिंक हो जाता है, बट एसिड में नो चेंज इन कलर। सो टू मोर इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, न्यूट्रल में ऑरेंज है और एसिड में रेड है और बेस में येलो है। और फिनोल्फेथलीन न्यूट्रल कलरलेस, एसिड में कलरलेस बट बेस में पिंक कलर। नाउ यहाँ इसी के साथ हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। अभी पिंक कलर का होने का मतलब है ये NaOH बेसिक इन नेचर है। हम इसमें एसिड डालते जाएं ड्रॉप वाइज तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके बेस के नेचर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब सारा का सारा बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा कलर विल चेंज अगेन टू कलरलेस, क्योंकि न्यूट्रल में कलरलेस होता है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट how we check the colors of acid base indicators. So now better to keep it in the form of this table: serial number, indicator in neutral, acidic और basic और alkaline medium. So litmus क्या है, न्यूट्रल में पर्पल, एसिडिक में रेड, इसलिए ब्लू टू रेड चेंज करता है वो, और बेस में वो ब्लू होता है मीन्स रेड को भी ब्लू में चेंज करेगा। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज कलर का है, एसिडिक में रेड और बेस में येलो। फिनोल्फेथलीन कलरलेस होता है न्यूट्रल में, एसिडिक में भी कलरलेस और पिंक हो जाता है ये बेस में। अगर आपको याद हो हिंदी का मुहावरा होता है रंगे हाथ पकड़ना, तो वो इसी चीज़ से लिया गया है कि जब पता होता है कि कोई रिश्वत मांग रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले क्या करते हैं, स्पेशल नोट्स देते हैं जिस बंदे से रिश्वत मांगी है उनके ऊपर पाउडर्ड फिनोल्फेथलीन लगाते हैं। फिर वो पर्सन जब उसको गिनता है नोट को तो फिनोल्फेथलीन हाथों पर लग जाता है। फिर वो रिकॉर्डिंग करते हैं साथ में कि उस पर्सन के हाथ डिप करवाते हैं सोप सॉल्यूशन में। तो सोप क्या है, बेसिक इन नेचर, एकदम से पिंक कलर के हाथ हो जाएंगे और पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे उसको प्रूव करते हैं कि ये रिश्वत के वाले ही नोट थे। सो दैट इज फिनोल्फेथलीन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सच पीपल हु आस्क फॉर ब्राइब्स। देन वी हैव different acid base indicators and their color in different acidic or basic medium as well as in neutral. Now coming to the properties of acids and bases. So main 5 properties we will discuss: reaction with metals, reaction with metal carbonate and bicarbonate, reaction with each other, that is acid and base की reaction, neutralization reaction जिसको कहते हैं, and fourth will be reaction with metallic oxide, and fifth we will discuss about reaction with the non-metallic. So in this video आज हम first two properties करेंगे डिटेल में, next 3 we will do in the second part of this video series. So first of all, whenever you are doing such comparison it is better to make a tabular form differences, क्योंकि ये आपको रिवाइज करने में, क्विक रिवीजन करने में हेल्प करता है। तो ऐसा टेबल हमने लास्ट में फिर बनाना है। ये जस्ट सैंपल शो किया है कि आप सीरियल नंबर बना लें, एक में प्रॉपर्टी लिख लें 5 जो आती हैं उनमें से, और फिर एसिड के लिए क्या पॉइंट याद रखना है और बेस के लिए क्या रखना है। सो कमिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। मैंने एक और साथ में वर्ड लिखा रिएक्टिव मेटल। नाउ रिएक्टिव मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस है, तो आपने ऑलरेडी 8th में किया होता है टॉपिक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जहां हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं सीरीज में और बाकी हाइड्रोजन से नीचे। जैसे कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है एक्टिविटी सीरीज में, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम ये सब ऊपर होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये शो करता है कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है नेचर में, वही मेटल्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं। बाकी मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन because they are less reactive than hydrogen. So what happens when an acid react with a reactive metal? Reactive metal I already made clear, more than reactive than hydrogen. So जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस आउट होगा और मेटल सॉल्ट, जैसे कि हम जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का एक पीस डालें तो हमारे पास ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। हाइड्रोजन गैस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस
ऑर्डरलेस, ना तो इसका कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, सिर्फ बबल्स दिखाएंगे। तो हाउ कैन वी से कि ये हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की यही प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की। सो रिमेंबर स्टूडेंट, आपके 10th के सिलेबस में 2 गैसेज हैं, हाइड्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकल करके। और आज हम क्विक से जो है दैट इज साथ में हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल मतलब इट कैचेज फायर इमीजिएटली। सो इस वजह से इसका टेस्ट किया जाता है बर्निंग टेस्ट, मींस मेटल इसको बर्न करते हैं। जैसे ही कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा तो इमीडिएटली ये फायर कैच करता है और साथ में उससे क्या होता है, एक पॉप साउंड सुनाई देता है, जैसे हल्का सा ब्लास्ट होता है। सो इट इज यूज्ड, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट, सेम वे में सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। बट बैलेंसिंग ऑल्सो यू हैव टू चेक। हाइड्रोजन कभी सिंगल एटम रिलीज नहीं होता है, तो एक HCl से हमें H2 मॉलिक्यूल नहीं मिल सकता। हम 2 HCl लेते हैं, उसके बाद 2 Na की रिएक्शन, फिर हमारी रिएक्शन ये बैलेंस होती है। सेम वे में सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ सॉल्ट सोडियम का सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस इसमें भी डिस्प्लेस आउट होगी। ऐसे ही आप मोर रिएक्शंस कर सकते हैं प्रैक्टिस, और आपको डायग्राम भी दी हुई है बुक में जहाँ पे एक्टिविटी बताई हुई है कैसे प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, उसमें डाल देते हैं जिंक ग्रैन्यूल, ऊपर से कॉर्क से बंद करके एक डिलीवरी ट्यूब को ले जाकर एक ट्रो, ये ट्रो रखी हुई है बर्तन, इसमें सोप सॉल्यूशन के नीचे रख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस साथ आती है तो सोप के साथ बबल बनते हैं, उनके पास बर्निंग कैंडल लाएं तो पॉप साउंड हमें छोटे छोटे सुनाई देगी। एंड दिस इज द एक्टिविटी सीरीज। तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि कौन से मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर आपके पास मेटल हैं, दीज ऑल आर मोर रिएक्टिव, पोटाशियम से लेकर लेड तक। सो दीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, these cannot displace hydrogen from। तो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमारे पास जो मेटल हैं, इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक की बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड की, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। So you should be able to write the balanced equations for these reactions also. These are also under the topic reaction of metal and acid. In 3rd chapter again this will come. Second property, carbonate and metal bicarbonate. Before the metal and metals, so we should remember here, generally bases do not react with metals except for aluminium and zinc, and that also only with sodium hydroxide. तो aluminium and zinc जो है, they react with warm and strong base like sodium hydroxide. कोल्ड में इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अदरवाइज रिएक्शन यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होती है कि एल्यूमिनियम और जिंक व्हेन दे रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर मींस ऑन हीटिंग, दे आल्सो फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर हीटेड with concentrated aqueous NaOH. So here displacement reaction takes place. Very important name to remember, sodium zincate, Na2ZnO2. अब ये सोडियम जिंकेट कैसे बना है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O और जिंक ऑक्साइड का ZnO। दोनों सॉल्ट को मिला दें तो बन जाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। तो फार्मूला याद रखने के लिए क्या करना है, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, फार्मूला बन गया Na2O। जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला बन गया ZnO। तो दोनों को ही ऐड कर देंगे, Na2O प्लस ZnO, तो बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इसको एक्टिविटी को भी करना होता है, डायग्राम दी हुई है। एक स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब को फिट किया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वार्म हो, हीट किया हुआ उसको, और जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए। तो जैसे एसिड और मेटल टेस्ट देते हैं हाइड्रोजन गैस, वैसे ही साल्ट और हाइड्रोजन गैस इस केस में भी बनेगा। और यहाँ से ये MCQ की फॉर्म में भी डाल लेते हैं,
जहाँ पे आपको क्या करेंगे, रिएक्शन बोल देंगे एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की है, तो आपके पास साल्ट क्या होगा उसका नाम 3-4 दे देंगे। तो जिंक सोडियम जिंकेट याद रखना है। सेम में एल्यूमिनियम जिंकेट बनता है, बट वो रिएक्शन एज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। सो एनसीईआरटी से बाहर जनरली रिएक्शन नहीं आती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसिड बेस की रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं, मेटल सॉल्ट जिनमें एनायन CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन हो, बाइकार्बोनेट में HCO3 नेगेटिव आयन। सो जब भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। मेटल सॉल्ट जो जनरली सॉल्युबल होगा और एक्वा सॉल्यूशन आता है, वाटर जो लिक्विड है, और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बहुत फास्ट बबल्स प्रोड्यूस करती है जब रिएक्शन होती है इसके साथ, तो इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। वर्ड याद रखना है, व्हेन acid react with metal carbonate या bicarbonate, we will observe brisk effervescence means fast formation of bubbles of CO2. Now इसको हम टेस्ट करते हैं by passing through lime water, because कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है ये क्लियर लाइम वाटर को टर्न कर देता है into मिल्की सॉल्यूशन। सो वी कैन सी हियर व्हाट हैपन्स। हम जिंक कार्बोनेट का एग्जांपल ले रहे हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी एक मेटल कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड की रिएक्शन है। जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। सो हाउ वी विल कम टू नो दैट दिस गैस इज CO2, H2O और N2। तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे हम पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर। तो पहले हमने कार्बोनेट डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब इसमें हम कॉर्क लगा के एक टेस्ट ट्यूब से जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, एक और टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर रखेंगे जो कलरलेस है पानी की तरह, उसके थ्रू इसके बबल्स पास करेंगे तो वी विल सी there is whitish or milkiness appearance. What is the cause of this milkiness? तो लाइम वाटर के साथ CO2 की रिएक्शन से हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल। इस वजह से ये क्या बनाएगा, वाइट और मिल्कीनेस अपीयरेंस। एग्जाम्पल हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो तीनों में ही दोनों में सेम 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। डिफरेंस क्या है, सिर्फ बैलेंसी का। इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ 2 HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl 1 HCl से हमारी बैलेंसिंग होती है इक्वेशंस की। नाउ क्या कारण है कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, तो उसका रीज़न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, और CO2 गैस को पास करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है। इसकी वजह से ही मिल्कीनेस अपीयर होती है। सो टेबल बना के हमने उसमें नोट डाउन भी करना है इस चीज़ को कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और बेसिस जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक वार्म कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। सेकेंड, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है, फास्ट बबल फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगा। और बेसिस में क्या लिखेंगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। थैंक यू।